Today we talking about first law of thermodynamics, and this is also called law of conservation of energy. According to first law of thermodynamics, the energy can neither be created and nor be destroyed. We also discussed earlier this as a law of conservation of energy, that is energy can neither be created and nor be destroyed. It can be converted from one form to another form. That means according to this law, the energy can neither be created and nor be destroyed. It can convert from one form to another form, one form to another form. By follow this law, we cannot create the energy without consuming one form of energy. That means we cannot make a machine which can continuously generate the energy, which can be named as free energy generator. Energy cannot be generated. It can convert from one form to another form. That means the energy of this whole of the universe remains constant. On basis of this law, the energy of the universe remains constant. एनर्जी जो है यूनिवर्स की, जो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. ये कभी भी हम इसको इंक्रीज नहीं कर सकते, डिक्रीज नहीं कर सकते. सिर्फ हम इसको वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. That means the universe is being considered as an isolated system. Universe is being considered as an isolated system. It means the second point we can say the energy of a system which is isolated with its surrounding. Its surrounding remains constant. अगर हम कोई आइसोलेटेड सिस्टम भी यूज करते हैं फॉर द ऑब्जर्वेशंस, तो उस आइसोलेटेड सिस्टम की भी जो एनर्जी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी. We can take an example to justify this answer that energy cannot be created and not be destroyed. Suppose हम water molecule का example लेते हैं. Like we have hydrogen and half molecule of oxygen. Hydrogen, one molecule of the hydrogen and half molecule of oxygen. Then it will be converted into one molecule of H2O and it can be released the energy, that is 286.4 किलोजूल एनर्जी ये जो है रिलीज करेगा अगर हम 1 मोल ऑफ वाटर की फॉर्मेशंस करते हैं फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इट मे बी वेरी लिटिल बिट फ्रॉम बुक टू बुक.
इट में भी लिटिल बिट वेरी हो सकती है, बट मोस्ट ऑफली हम ये इसी के नियर अबाउट होगी। तो अगर हम वन वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशंस करते हैं तो जो एनर्जी जो रिलीज होगी इस रिएक्शन में वो 286.4 किलो जूल जो एनर्जी है वो क्या होगी, रिलीज होगी। अगर हम एक वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं और इसको हम डिकम्पोज करते हैं और इसको एनर्जी हम सप्लाई करते हैं, देन वी हैव नीड टू सप्लाई 286.4 किलो जूल एनर्जी। मतलब एक वाटर के मॉलिक्यूल को उसके एटम्स में ब्रेक करने के लिए हमें जो है इतनी ही एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। ये जो सिस्टम है वन वाटर मॉलिक्यूल 286.4 किलो जूल एनर्जी ही क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। मतलब जितनी एनर्जी यहाँ वन वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में जनरेट हुई, रिलीज हुई, उतनी ही एनर्जी अगर हमें वाटर मॉलिक्यूल को रिवर्स कन्वर्ट करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो ये उतनी ही एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इट कैन बी प्रूव दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। Yes, now we discuss about the mathematical expression for the first law of thermodynamics. That is mathematical expression for first law of thermodynamics. For first law of thermodynamics. As we know, heat is being internal energy of the system can be changed due to doing the work on the system or by the system, and by transfer the heat in or out the system. So suppose we have a system, हमारे पास एक सिस्टम है। अभी इस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है U1 इंटरनल एनर्जी है। इनिशियली जो हमारे पास सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या है, U1 है। हमने इस सिस्टम को हीट सप्लाई की, इस सिस्टम को हीट सप्लाई की क्यों, इस सिस्टम को हमने क्यों हीट सप्लाई की, मतलब इनिशियल जो इंटरनल एनर्जी है, इनिशियल इंटरनल एनर्जी जो है हमारे पास वो है U1, और हमने हीट जो सप्लाई की, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आफ्टर सप्लाई हीट सप्लाई करने के बाद जो इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या होगी, U1 पहले एनर्जी थी, क्यों हमने इसको हीट सप्लाई कर दी, दैट मींस अब हमारे पास जो सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगी, U1 प्लस Q, एंड आफ्टर दैट वी डू द वर्क ऑन द सिस्टम, वी डू द वर्क ऑन द सिस्टम continuously work done on the system पे हमने W जो वर्क है वो किया, उसके बाद जो सिस्टम की एनर्जी होगी वो क्या होगी, U2 एनर्जी होगी, और ये U2 एनर्जी किसके इक्वल होगी, U1 प्लस Q जो एनर्जी थी हमारे पास वो पहले ही थी, हीट सप्लाई करने के बाद अब हमने उसी सिस्टम पे W वर्क भी कर दिया, तो ये किसके इक्वल होगी, प्लस W। तो U2 इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, Q is the change in internal energy due to heat, plus W is the internal energy due to doing the work on the system. तो ये U1 हम अपोजिट साइड लेके आएंगे, देन U2 माइनस U1 जो है नेगेटिव हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू Q प्लस W।
और हमें पता है कि U1 माइनस U2 किसके इक्वल होता है, दिस इज बीइंग इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज। ये किसके इक्वल होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल होगा। इसीलिए जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी चेंज है दैट विल बी इक्वल टू Q प्लस W। जितने हीट देंगे, जितना वर्क करेंगे, उतना ही इंटरनल एनर्जी में जो है चेंज होगा। Change in internal energy is equal to heat added to the system and work done on the system. Q is heat added to system, not released by the system, and W is work done on the system, on the system. But if work is done by the system, if work is done by the system, उस केस में क्या होगा, as we know, if work done by the system, W is being इक्वल टू बी नेगेटिव। W जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। दैट मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी U डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। वैसे जनरली फॉर्मूला हम यही लेंगे Q प्लस W, लेकिन जब सिस्टम वर्क करेगा किस पे, सराउंडिंग पे, तो उस केस में W की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ओवरऑल हमारे पास Q माइनस W आ जाएगा। अगर सिस्टम वर्क करेगा सराउंडिंग पर तो जो इंटरनल एनर्जी जो चेंज होगी Q माइनस W के इक्वल होगी। एंड फर्दर एज वी नो W वर्क डन इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। वर्क डन हमने जो है पहले डिस्कस किया था, ये किसके इक्वल है, P डेल्टा V के इक्वल है। क्लियर, दैट मींस वी कैन आल्सो राइट दिस एक्सप्रेशन दैट इज डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज बीइंग इक्वल टू Q। ये नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव माइनस P डेल्टा V, इसके इक्वल आ जाएगा। यस, change in internal energy is being equal to Q minus P. P is the external pressure applied on the system, and delta V change in volume of the system. Suppose if the system work isothermally expansion in a vacuum। अगर सिस्टम वर्क करता है, सिस्टम की वॉल्यूम में तो चेंज हो रहा है, वैक्यूम में सिस्टम की जो वॉल्यूम है वो क्या होगी, एक्सपेंड होगी। लेकिन वैक्यूम के अंदर सिस्टम पे जो एक्सटर्नल जो प्रेशर अप्लाई होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। दैट मीन्स इन वैक्यूम P एक्सटर्नल इज इक्वल टू बी जीरो। एक्सटर्नल जो प्रेशर है वो क्या होगा, जीरो होगा। एंड इन वैक्यूम हीट इज बीइंग कैन नॉट बी ट्रांसफर, हीट भी जो है वो ट्रांसफर नहीं होगी। Q इज बीइंग आल्सो इक्वल टू बी जीरो। दैट मीन्स अगर P प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर अगर जीरो है, दैट मीन्स माइनस P डेल्टा V। ये भी किसके इक्वल होगा, यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर P की वैल्यू क्या होगी, जीरो इंटू डेल्टा V। वैक्यूम के अंदर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, लेकिन प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन वॉल्यूम प्लस प्रेशर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि किसके इक्वल है, वर्क डन के इक्वल है। तो वैक्यूम के अंदर वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी,
जीरो हो जाएगी, और जो हीट ट्रांसफर होगी वो भी क्या होगी, जीरो होगी। दैट मीन्स टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज इन वैक्यूम इज बीइंग इक्वल टू बी जीरो। ये जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वैक्यूम के अंदर, वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। Yes, further next change in internal energy. If the system works isothermal expansion at constant volume. Isothermal means temperature remains constant. Constant temperature और constant volume पे अगर काम करता है, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, देन डेल्टा V इज इक्वल टू बी जीरो। डेल्टा V की वैल्यू क्या होगी, जीरो। और डेल्टा V को अगर हम पुट करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर जीरो, तो देन इट विल बी आल्सो इक्वल टू जीरो। दैट मींस delta U is equal to B Q and V. Here V represent the constant volume and constant volume. Isothermal expansion, you can write it at constant volume. Constant volume. Isothermal means temperature constant, volume constant है ही। जब टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा और वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा, उस केस में जो वर्क डन होगा तब भी क्या होगा, जीरो होगा। और जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा, दैट इज ओनली ड्यू टू चेंज इन हीट, और हीट इज बीइंग चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड इंटरनल एनर्जी इज बीइंग इक्वल टू बी क्यू वी। वी रिप्रेजेंट द कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगी तो वर्क डन जीरो होगा, और उस केस में इंटरनल एनर्जी में सिर्फ हीट की वजह से चेंज आएगा। और इसी के अंदर अगर हम बात करते हैं, इफ वर्क इज डन इन एडियाबैटिक सिस्टम, एडियाबैटिक सिस्टम, अगर हम एडियाबैटिक सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो जो हीट होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। हीट हम ना तो सप्लाई कर सकते हैं सिस्टम को, और ना ही सिस्टम में से रिमूव कर सकते हैं। इसीलिए उस केस में क्यू किसके इक्वल होगा, जीरो के। एडियाबैटिक के अंदर जो क्यू की जो वैल्यू होगी, हीट की जो वैल्यू होगी, वो क्या होगी, जीरो होगी। इसीलिए इंटरनल एनर्जी चेंज इज बीइंग इक्वल टू बी वर्क इज बीइंग डन इन एडियाबैटिक सिस्टम। सो वी ऐड ए सुफिक्स सबस्क्रिप्ट AD। ये AD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एडियाबैटिक वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें जो है हीट जो है वो क्या होगी, सिस्टम की कांस्टेंट होगी। As we discussed earlier about the change in heat work done, now if heat is added to, it is added to system, then Q is equal to be positive। Q की जो वैल्यू हम लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। if heat is released by the system, then Q is being taken as नेगेटिव। Q की जो वैल्यू हम लेंगे हीट, वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। सेम थिंग इफ वर्क डन on the system, then W is equal to be पॉजिटिव। जो W वर्क डन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एंड इफ वर्क डन by the system, then W is equal to be नेगेटिव। अगर सिस्टम काम करता है सराउंडिंग पे, तो जो वर्क डन की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। अगर सिस्टम पे काम करती है सराउंडिंग, तो जो वर्क डन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी।